अच्छा, last class में what till where we have done? I mean, till what topic we have completed? We have completed leadership importance, right? Nancy, you were there in the last class. Yes, ma'am. So, have we completed this planning, organizing, staffing, all these functions, or Yes, ma'am. okay? Then this 14 principles of management, have we completed? No, right? No, ma'am. अच्छा, ठीक है. Okay. Detailed planning and delegation is we have not done. Okay. 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 So next, what we are going to study is Henry Fayol's principle of management. Just give me a moment. Last. No, not this document. So this is the file. We are done with all type of leadership. We are done with the layers of management. We have also completed the basics of functions of management, right? Correct. And importance also we have completed, or we are supposed to do it? Importance of management. Nancy? Yes, ma'am. ठीक है. ये भी हो गया था हमारे. और दीप्ति, were you there in the last class? No, ma'am. Okay. ठीक है. We have also gone through the changing mindsets of the customer in the hospital industry. See, guys, this is a very important topic, changing mindsets of patients and their expectations. इसको मैंने last class में भी बहुत अच्छे से कराया था. और एक बार Yes, आप ma'am. लोग भी when you will go through the file, इसको भी एक बार अच्छे से करना. It's very easy, like now how the patient mindset have changed. What kind of facilities are they expecting, and now what is the change in the hospital management. So earlier, like the focus was only on a providing service to cure of patient. Nowadays, apart from that, we are also working on the additional supporting functions, like the cafeteria, the attending facilities. Then we are also working on the times in you know through which the entire cycle moves, like right from. So for example, in case a patient enters a hospital, so from entering to query management to appointment for OPD to then treatment, and then till getting medicine, what will be the time schedule, what will be the timelines, a customer has to invest in an hospital. Because nowadays, competition is huge. There's a cutthroat competition, and that is in every industry. No matter how good you are in one particular service, but you will definitely find competitors in that industry, right? So in order to meet that cutthroat competition, and in order to be more dynamic for managing the business environment, hospitals are also changing the approach. ठीक है? Clear है guys? Hello, no, हाँ या नहीं, yes, कुछ तो बोलेंगे ना हम लोग. यार मैं सो जाऊंगी अगर तुम लोग नहीं बोलोगे तो, है ना? ठीक है. ठीक है जी दीप्ति, हाँ जी, ma'am. बोलते रहें. और कौन है? दानिश, दीपक. Okay, now we are working on the hospital management tips. What are the important hospital management tips, so that we can manage it properly, or in order to running a hospital smoothly, what are the important tips that you should always apply in the hospital? Okay, first of all, training of hospital staff. इसमें क्या है, when you introduce a new staff to the hospital, so staff should also get acquainted to what are the important rules and regulations, what are the policies, and what kind of training he or she will get. उसका जो orientation होता है, पहले हम वो
प्रॉपरली प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद उनको जो वहाँ के जो प्रोसीजर्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, वहाँ के मेथडोलॉजीज हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, हम उसमें भी ट्रेन करेंगे ताकि वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से अकस्टम हो जाएं, एक्वेंटेड हो जाएं और उसी में ही वो उसी तरह से ट्रेन होके अपना ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अलाइन हो जाए। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. Then we have used innovative technology. Now, automation of hospital system can be beneficial to everybody involved. For example, जैसे डाइकॉम या क्लाउड इमेज स्टोरेज है, उससे आपको स्टाफ की जरूरत थोड़ी कम पड़ती है। स्टाफ की जरूरत कम पड़ती है का मतलब ये है कि नंबर ऑफ पीपल कम हो जाते हैं। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ पीपल कम हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड सारा काम हो जाता है, तो ऑब्वियसली मिस्टेक्स के चांसेस, एरर्स के चांसेस कम हो जाते हैं और आपका एफिशिएंसी बढ़ती है। तो जब भी आप कोई अच्छा हॉस्पिटल को अच्छे लेवल पे मूव कर मैनेज करना चाहेंगे, देन आपको एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज भी करना होगा या आना चाहिए। ठीक है, द थर्ड इम्पोर्टेंट टिप इज अकाउंटेबिलिटी इज द की। तो जो भी आपका स्टाफ है हॉस्पिटल का, उसके लिए आप डेली, वीकली, मंथली, एनुअली, सेमी एनुअली इस तरह के रिपोर्ट्स का एक मैकेनिज्म फॉलो करवाएंगे, जिसमें हर हॉस्पिटल के बंदे को, हर मैनेजमेंट के बंदे को, हर हॉस्पिटल के स्टाफ को वो फॉलो करना पड़ेगा। और उन रिपोर्ट्स को प्रोड्यूस करके अपनी मैनेजमेंट को दिखाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक नर्स का आज का डे टू डे का जो काम है, उसने उसको उसमें अपनी फाइलिंग करी, नेक्स्ट डे की फाइलिंग करी। फिर जब 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 रिपोर्ट्स के ऊपर बात करी जाए या जब जब हम फीडबैक्स चेक करें, जब जब हम परफॉर्मेंस चेक करें, तो वो जो रिपोर्ट्स हैं, वो जो परफॉर्मेंस एविडेंस है आपके पास, दैट विल हेल्प यू टू इवैल्यूएट। कैसे? एनी एग्जांपल? कौन बताएगा? मैम, कोई फर्दर प्लानिंग की फोरकास्टिंग करने के लिए कि लास्ट टाइम क्या क्या चीजें, कौन से स्टेप्स लेने से क्या इम्प्रूवमेंट हुआ या फिर क्या डाउनफॉल हुआ, उसे आगे करेक्टिव मेजर्स में यूज करने के लिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट एग्जाम्पल। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे हमें बताया कि फोरकास्टिंग के लिए, दैट मीन्स जब आप वो जो पूरे फंक्शंस की बात करते हो ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, सो दैट मीन्स जब आपने अपनी प्लानिंग करी, उस हिसाब से आपका काम एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आप कंट्रोल कर पाओगे। दैट मीन्स आप इवेल्युएट कर पाओगे और उसके बेसिस पे फिर नेक्स्ट प्लानिंग के ऊपर काम कर पाओगे। सो जो ऑनगोइंग प्रोसेस है ना आपकी मैनेजमेंट का, उसमें आपको ये जो आपकी रिपोर्ट्स है, ये जो फाइलिंग है, ये जो परफॉर्मेंस के आपके एविडेंसेस है, ये आपको आपके फंक्शंस के लिए, आपकी फोरकास्टिंग के लिए, आपके फर्दर प्लानिंग के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके एक्सपेंशन प्लान्स के लिए एक बेस बन के काम करता है। ठीक है, देन वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ मैनेज केयर सिस्टम। सो मैनेज केयर सिस्टम जो है, उसमें आपको एक प्रॉपर मैकेनिज्म, सिस्टम या एक प्रोसीजर, ठीक है, मैकेनिज्म, सिस्टम या प्रोसीजर इस तरह से तैयार किया जाता है जिसमें आपके जो भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का मतलब होता है कि जो लोग हैं, जो आपके पास फिजिकल रिसोर्सेज हैं, दैट मीन्स इक्विपमेंट्स, मशीनरी, गाड़ियां या जो भी आप यूज कर रहे हैं, जो आपका कैपिटल है यानी कि पैसा, इन्वेस्टमेंट्स, मनी, सब वो सारी चीजें जो हैं वो या इवन इवन स्टॉक, स्टॉक मतलब हॉस्पिटल का स्टॉक करके बात करेंगे तो ये आपकी दवाइयाँ, मेडिसिन, तो ये सारी जो है वो प्रॉपरली मूव होने का मतलब ये है कि जहां जहां रिक्वायरमेंट, जब जब रिक्वायरमेंट, और हमारे पास प्रिडिक्शंस भी लगा के रखते हैं इसमें कि भाई ये यहाँ रिक्वायरमेंट होगी, ये यहाँ रिक्वायरमेंट होगी। जैसे स्टॉक है, मेडिसिन है, मेडिसिन का हमें पता रहता है कि एक आपके जो फॉर्मूलाज आपने अगर पढ़े हो तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है, सॉरी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, या फिर आपके
एवरेज स्टॉक्स है या फिर आपके मिनिमम रिक्वायर्ड स्टॉक्स है। इस तरह की जो टेक्निक्स यूज की जाती हैं वो इसलिए यूज की जाती है ताकि हमें पता चले कि कब कब मेडिसिन हमें जल्दी से ऑर्डर कर लेनी है, ताकि जब हमारे पास हमारे हॉस्पिटल में उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो उसकी शॉर्टेज ना हो जाए, क्योंकि शॉर्टेज हो जाने से ना, मेडिसिन की शॉर्टेज हो जाने से बहुत पैनिक होगा हॉस्पिटल के अंदर, है ना? एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट? Yes, ma'am. एब्सोल्युटली मैम। है ना? सो वो पैनिक होगा, अगर पैनिक होगा तो पूरा हॉस्पिटल हिल जाएगा, ऊपर टॉप मैनेजमेंट हिल जाएगी, पूरे रनिंग ऑपरेशंस हिल जाएंगे, ऊपर से जो रेपुटेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सालों लग जाते हैं रेपुटेशन बनाने में और घंटों लग जाते हैं रेपुटेशन खराब होने में, राइट? तो वो गुडविल हमारी मैनेज रहे, हमारी बनी रहे, इसीलिए हम एक अपना प्रॉपर केयर सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं जिसमें आपके हर कोई, मतलब राइट फ्रॉम डॉक्टर्स, कंसल्टेंट, नर्सेस, इवन जो आपका सपोर्टिंग स्टाफ है या आपकी बिलिंग स्टाफ है, रिसेप्शनिस्ट हैं, वो सारे जो है उनको अपने टास्क पूरे डिफाइन हो, उनका टाइम डिफाइन हो, उनको पता उनको कौन सी चीज के लिए कहाँ जाना है, उनको पता हो कि कब कहाँ कहाँ अवेलेबल रहना है। तो इस तरह का जो केयर सिस्टम है वो आपके हॉस्पिटल की स्मूथ रनिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है? उसकी बात कह रहे हैं कि डेवलप एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन जो है हॉस्पिटल्स में काफी चैलेंजिंग हो जाता है, राइट? बिकॉज ऐसा क्यों होता है? कोई सोच के बताएगा कि ऐसा क्यों होता है कि कम्युनिकेशन चैलेंजिंग क्यों होता है हॉस्पिटल्स में? हेलो दीपक, Yes, ma'am. दीपक वुड यू लाइक टू स्पीक ऑन दिस? कि कम्युनिकेशन चैलेंजिंग क्यों हो सकता है हॉस्पिटल्स में, या इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? गाइस, एनीवन? Yes, ma'am. हम्म मैम मिसकम्युनिकेशन हो जाता है जैसे हम्म अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में, हम्म तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हम्म लाइक ओके। किसी पेशेंट का हैंड ओवर लेते वक्त हम्म मिसकम्युनिकेशन हो गया, वहां हम्म पर क्लियर नहीं करा दूसरी नर्सिंग स्टाफ ने कि कौन सी मेडिसिन दी है या नहीं दी। हम्म ओके, वेरी गुड। और कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। very nice. Or anybody else would like to add? Danish, would you like to speak? Are you speaking, Danish? I'm not able to hear. Yes, ma'am. Hmm. Danish, are you speaking? Dipti, would you like to add? मैम, टू अवॉइड नियर मिस इवेंट्स, आई मीन जैसे अगर सपोज कोई किसी पेशेंट ए पेशेंट अगर बेड पे है Hmm. और उनके लिए कोई भी इंजेक्शन रेडी किया था कि वो उनको लगाना है, Hmm. लेकिन जब वहां पे नर्स पहुंचती है तब वहां पे पेशेंट भी बैठा हुआ है जो Hmm. कि
पहले उनके कम्युनिकेशन से रह गया, तो वहाँ पे अगर वहाँ पे जाके नर्स ने चेक किया तब तो वो बच गया, वो नियर मिस इवेंट में आ गया। लेकिन अगर उन्होंने चेक नहीं किया और कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हुआ, लापरवाही की, और तो वो इंजेक्शन पेशेंट बी को लग जाएगा, तो इससे दिक्कत हो जाएंगी, तो वेरी हार्म भी हो सकता है। वेरी गुड राइट। सो हियर वी आर सेइंग कि अगर कोई मिसकम्युनिकेशन हो जाता है बिटवीन द स्टाफ, between the working people, apart from that, imagine the mindset of a patient or a mindset of a relatives of patients. Just a moment, guys. Just a moment. Okay, so what I was saying, just imagine the mindset, the panic, the condition of a patient, or more than that, the relative of a patient. Attendants, attendees. Now what happens? Like, वो बहुत pressure में होते हैं, correct? If they reach out somebody for any information कि ये कहाँ है, डॉक्टर्स कब आएंगे, ओटी कहाँ पर है, मेडिसिन कहाँ से मिलेंगी, और क्या मेडिसिन लेके आनी है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अ पेशेंट। अब आप देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन है जो एक रिलेटिव जो है आपके पेशेंट को उनको चाहिए। गेटिंग नाउ you see why I'm quoting this example. Try to analyze the kind of information, the kind of queries, the kind of the sources that they want to inquire from somebody in a hospital. So they'll speak to so many people. They'll speak to receptionists, they'll speak to admission center guy, they'll talk to TPA people, they'll talk to pharmacy, they'll talk to nurses, they'll talk to even जो वहाँ पे हाउस कीपिंग स्टाफ है, उनसे पूछेंगे ना कि ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, कहाँ जाना है हमें, राइट? क्योंकि इतना प्रेशर होता है उनको कि क्योंकि उनका कोई रिलेटिव इज सिक, and when you have a serious illness, somebody is from the family is not not well, or going through a very serious illness. Imagine the kind of pain people would have who are associated with this hospital and coming to the hospital with an expectation that they'll find a cure for this problem, right? तो वहां अगर miscommunication या communication gap आता है, then imagine the impact the patient or the relatives would have. Getting my point? Yes, ma'am. Right? So that is why for the hospital, it is extremely important. It is not only important, it's extremely important to have a proper channel of communication, train their staff to provide a right source of information and timely information also. Like for example, even अगर वो housekeeping से भी पूछ लेते हैं कि आपका ऑपरेशन थिएटर कहाँ पर है, या यहाँ इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में राउंड्स के लिए डॉक्टर्स कितने बजे आते हैं, तो उनको भी क्लियर हो कि भाई ये टाइमिंग होता है डॉक्टर्स के आने का। समझ में आया? बिकॉज that is going to impact the mental health of the people associated with the patient. और अगर आप उनको मेंटली उनको पीसफुल रखोगे और मेंटली उनको एक राइट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन और टाइमली इंफॉर्मेशन दोगे, तो डेफिनेटली उससे उनको अपनी प्रॉब्लम को हैंडल करने में बहुत सपोर्ट मिलता है। सो
हॉस्पिटल में पूरा पूरा खेल ही मेंटल हेल्थ का ज्यादा है, एंड नॉट ओनली फॉर पेशेंट बट ऑल्सो फॉर द रिलेटिव्स ऑफ पेशेंट, राइट? क्योंकि वो ही आपके कोर कस्टमर्स हैं, उनका वो हॉस्पिटल में ट्रस्ट मेंटेन होना, बिलीव मेंटेन होना बहुत जरूरी है। और वो तभी होता है कि जब आपके सोर्सेस की इंफॉर्मेशन उनको प्रॉपरली पहुंचे, उनको बिल्कुल क्लियर कट इंफॉर्मेशन हो, उनको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी लगे इंफॉर्मेशन में। ठीक है, ठीक है। तो जब भी हम हॉस्पिटल बनाते हैं ना, चाहे वो छोटा हो या कोई छोटा क्लिनिक भी हो, हमें फोकस करना है, लाइक whenever you would also be working on the management, or you would also be working on managing any hospital or creating any hospital, or if you get an opportunity to strategize, focus more on communication। इतना क्लियर कट कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी तैयार करना ताकि आपके हॉस्पिटल से निकली हुई एक एक बात बिल्कुल करेक्ट हो। ठीक है, बिकॉज इससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत पड़ता है, रेवेन्यू मॉडल पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपके पेशेंट सेटिस्फेक्शन लेवल पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, जो फीडबैक्स क्रिएट होते हैं वो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, और जो आपकी मार्केट में इमेज आती है थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, इवन थ्रू सोशल मीडियाज ऑल्सो, वो भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप समझ रहे हो, कम्युनिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल दीज थिंग्स। सो दैट इज वाई आप जब भी एक स्मूथ हॉस्पिटल तैयार करने की कोशिश करते हो, या उसको किसी भी हॉस्पिटल को एक स्मूथ लेवल पे ले जाते हो, तो सबसे पहले जाके उसकी कम्युनिकेशन चेक करो, कैसा हो रहा है हमारे हॉस्पिटल में कम्युनिकेशन। ठीक है, क्लियर गाइस? हेलो, या यस मैम। नैन्सी बोलेगी या फिर Yes, दीप्ति ma'am. Yes, बोलेगी? ma'am. हाँ हाँ, चलो दानिश की बात भी सुनी, गुड। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई वल्नरेबल एरियाज। अच्छा, आपका ये सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं, ये आपके किसी भी कंपनी में या किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में या इवन हमारे घर में भी होता है कि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो वल्नरेबल है, जो वीक हैं। एरियाज वीक होने का मतलब ये है, कभी कभी अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली में भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, या कोई बीमार हो गया, या कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, इश्यूज आ गए, है ना? तो हम आइडेंटिफाई करेंगे पहले, सबसे पहले उन एरियाज को जिसको, जो बहुत वीक पड़ गए हैं, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है, इसी तरह से हॉस्पिटल्स में भी देयर आर सो मेनी एरियाज विच यू विल आइडेंटिफाई एज अ वीक एरियाज और एज अ वल्नरेबल एरियाज, जहां पर आपको फोकस करना है ताकि वो वापस जगह पे आए और पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चलने लग जाए। एग्जाम्पल दो मुझे, दानिश, मुझे कोई एग्जाम्पल दो ऐसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम कर रहे हैं, बिकॉज इसके ऊपर से क्वेश्चन बनता है। आइडेंटिफाई वल्नरेबल एरियाज। दानिश, Deepak, can you speak today? आज स्ट्राइक है क्या दानिश और दीपक की, कि हम आंसर देंगे ही नहीं कोई? दानिश, दीपक, दीपक कहाँ गया? दीपक, दीपक यू देयर? ओके, ठीक है, नैन्सी आप ही बताओ, कोई बात नहीं। मैम वल्नरेबल एरियाज लाइक कोई पेशेंट अगर कैजुअलिटी में आता है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है, तो वहां पे हमारा स्टाफ जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए।
लाइक हम्म, तो हमें वल्नरेबल एरियाज के स्टाफ और वहाँ की क्लीनलीनेस ये सब के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड ऑल्सो एक और वल्नरेबल और डिफिकल्ट एरिया भी है हैंडल करने के लिए, वो आपके कौन कौन से होते हैं आपके हॉस्पिटल में, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो? मैम ओटीज, आईसीयूज, एनआईसीयूज, ओटीज, एमआईसीयूज। आईसीयूज, ठीक है, सीसीआई, ओके, देन और भी इम्पोर्टेंट है, एक और भी है विच इज टीपीए, क्योंकि वहां पर भी लोग ना गुस्से में आते हैं बहुत ज्यादा कि ये वाला इंश्योरेंस में कवर क्यों नहीं है, ये क्यों कवर है, ये इसका कितना अमाउंट बैठेगा, इसका कितना यस अमाउंट क्यों मैम, नहीं वो मिल रहा। अकॉर्डिंग टू उनकी पॉलिसी होता है। हाँ, लेकिन जब अगर आप टीपीए में लोगों को एनालाइज करोगे, स्पेशली जो सेमी लिटरेट लोग आते हैं, दे कम विथ लॉट ऑफ हाई ट्रॉमा, they come with a lot of high anger, and then in order to manage them silently, politely, your executive needs to be very very patient, जो लोग हैंडल करते हैं उनकी क्वेरीज को, क्योंकि एक तो क्यू बहुत बड़ा होता है, लोगों में पेशेंस नहीं होते सुनने के लिए, और एक चीज को लोग 10 बार पूछते हैं, है ना, अगर आपने टीपीए में काम किया है तो। Have you experienced this sort of environment in any TPA department? यस मैम। है ना, वहां पे आप देखोगे वो भी एक वल्नरेबल एरिया है हॉस्पिटल के लिए काम करने के लिए। तो वहां आपको एक तो स्टाफ ज्यादा एलोकेट करना पड़ता है, आपके सिस्टम बहुत क्विक होने चाहिए, आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, ये ना हो कि पहले कुछ और बोल दिया बाद में कुछ और, बहुत बड़ा कलेश मचेगा नहीं तो। हॉस्पिटल के अंदर बहुत ज्यादा इश्यू बना देते हैं लोग, राइट। सो यू विल हैव टू फाइंड, देखो, ट्रीटमेंट देने के लिए आपका क्रिटिकल केयर यूनिट्स और ये आपका आईसीयूज, ओटीज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, बिकॉज वहां पे तो यू आर जस्ट हैंडलिंग अ लाइफ, राइट। उसके साथ साथ जो आपके हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट को, पीस को इम्पैक्ट करेगा, जैसे टीपीए है, बिलिंग डिपार्टमेंट है, जहाँ पे फाइनेंस की बात होती है, वहां पर भी आपको एक स्मूथ मैनेजमेंट लानी पड़ेगी, ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हमें लगता है हॉस्पिटल को चलाना मतलब ओवरऑल चलाना नहीं, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं हॉस्पिटल के जो पूरे पूरे हॉस्पिटल की फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। देन वी हैव कीप कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेटेड, ये सबको पता है कि जो भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो वेबसाइट पे हो, फोन नंबर्स हो, रिसेप्शनिस्ट के पास इंफॉर्मेशन हो, वो मेरी अपडेटेड होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। देन वी ओवरसी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स। Okay. Departments such as the emergency department and admission may require more attention in your hospital. Good hospital management is making sure that the best people and system are operating efficiently in these areas. आपका जो भी important departments हैं वहाँ पर आपके, चाहे वो admission हो, जो query management हो, चाहे आपका TPA हो, वहाँ पर आपके जो है वो जो अटेंशन है वो बहुत अच्छे से मिलनी चाहिए, मतलब वहाँ के उस फंक्शंस को भी हमें स्मूथली ऑपरेट करना है। देन वी हैव रिमेन पेशेंट सेंटर। ऑब्वियसली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हमें उसको सबसे पहले कस्टमर की नजर से देखना है, हमें अपने क्लाइंट की नजर से देखना है कि क्लाइंट जब मेरे ऑफिस में आएगा या पेशेंट जब मेरे हॉस्पिटल में आएगा तो वो क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट करेगा, किस तरह की इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट करेगा, हाँ, वो सारी चीजें हमें हॉस्पिटल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करनी है, ठीक है, कि मेरा जब पेशेंट हॉस्पिटल में एंटर करने से लेके एग्जिट तक, what all information he would need, which all steps he will go through, what all financial charges will be implied on him, what kind of environment and the ambience of the hospital that we are going to give to him, ठीक है, clear है guys? यस मैम। Okay, then we have one topic which is called coordination. Coordination क्या होता है, एक बार ये नैन्सी पढ़ो एक बार यहाँ से यहाँ तक, पूरा गोल तक, हार्मोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज से। Coordination, the harmonization of activities of different work groups and departments. Coordination is the orderly arrangement of individual and group efforts to provide unity of action in the pursuit of a common goal.
All these departments must function in an integrated manner so that the organizational goal can be duly achieved. Thus, coordination involves synchronization of different activities and efforts of the various units of an organization so that the planned objectives may be achieved with minimum conflict. In other words, coordination is the orderly management of individual and group efforts to provide unity of action in the pursuit of common goal. वेरी गुड, थैंक यू टंसी। ओके, सो क्या समझ में आ रहा है? सो कोऑर्डिनेशन में हमें क्या करना है कि यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब किसको कौन सा एक्शन है वो बिल्कुल स्मूथली क्लियर डिफाइंड रहे, राइट, ताकि लोग उसको उसको एक्शन कर सके, लोग उसको परफॉर्म कर सके। सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसको एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट रहे, दैट मीन्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहें ताकि जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके। सो कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या है? सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मीन्स एक सिंक में लेके आना, 1 2 3 4 एक्टिविटी जैसे डिफाइन होके क्लियरली एलोकेटेड हो डिफरेंट एक्टिविटीज डिपार्टमेंट्स के अंदर, और उसके हिसाब से सब अपने अपने काम को करें ताकि ओवरऑल जो मेरी मैनेजमेंट का गोल है वो फुलफिल हो सके। ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में आ जाता है एक आपका इंटरनल। इंटरनल में रहेगा आपको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या होता है? बिटवीन डिफरेंट पर्सन्स एंड डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पोजीशन वाइज। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि सेम लेवल पे, यानी कि अगर दो हेड्स आपस में बात कर रहे हैं या दो नर्सेज आपस में बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उस तरह का कोऑर्डिनेशन आपका हॉरिजॉन्टल हो जाता है। ठीक है। नाउ प्रोसीजर एंड सबनेटिव कोऑर्डिनेशन, इसमें क्या है कि आपके it refers to the integration of follow and process of activities and behavior and relations of the members in an organization. Substantive वो procedural हो गया, मतलब एक फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर सर्जरी के लिए अलग अलग डॉक्टर्स एक साथ आए, उन्होंने उस पर काम किया और फिर वो करके चले गए। ठीक है, तो दैट इज योर प्रोसीजरल कोऑर्डिनेशन। सब्सटैंटिव कोऑर्डिनेशन क्या होता है? इट इज विद द कंटेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज, दैट मींस जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज डिफाइन हो रही है वैसे वैसे आपस में कोऑर्डिनेशन हो रहा है। ठीक है। देन वी हैव एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। एक्सटर्नल में ऑब्वियसली आप जितने भी बाहर के लोग हैं, हॉस्पिटल से बाहर के लोग, यानी कि आपके एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, कस्टमर्स, पब्लिक, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, जिनके साथ भी आप आपकी डीलिंग चल रही है, बाहर वाले लोग जो हॉस्पिटल से बाहर हैं आपके, है ना, उन लोगों के साथ जो कोऑर्डिनेशन होता है दैट इज योर एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। अब आप मुझे बताओ हॉस्पिटल कैसे, या हॉस्पिटल के कौन से एक्सटर्नल पार्टीज रहेंगी जिनके साथ वो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं? एनी आइडिया? मैम जो भी सर्विसेज वो आउटसोर्स कर रहे हैं उनसे कोऑर्डिनेशन। कम अगेन, जो भी मैम जो भी सर्विसेज आउटसोर्स्ड है उन लोगों से कोऑर्डिनेशन। वेरी गुड। जिन लोगों को हमने अपनी सर्विसेज आउटसोर्स की हुई हैं उन लोगों से कोऑर्डिनेशन। वेरी गुड। एनी मोर एग्जांपल? excellent example, Dipti. Any further example? मैम जो वेंडर्स आते हैं उनसे कोऑर्डिनेशन। यानी कि ये सप्लायर्स आपके, है ना? हाँ जी मैम। और पेशेंट्स और उनकी अटेंडेंस भी। वेरी गुड। अटेंडेंस और इवन पब्लिक, इवन जो आपके यू नो आजकल क्या हो रहा है कि इवन हॉस्पिटल्स भी पीआर एजेंसीज के साथ काम करते हैं अपने अपने बारे में एड्स देने के लिए, अपने बारे में गुडविल क्रिएट करने के लिए मार्केट में, है ना, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ जो कनेक्टिविटी है उन लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करना, सो दैट मेरी ऑर्गेनाइजेशन विद इन सिस्टम ऑल्सो एंड जो पब्लिक इमेज है, जो गुडविल है, वो भी बहुत स्मूथली मैनेज हो। ठीक है, क्लियर गाइस? ओके, एक बार ये सब अपने आप पढ़ेंगे, ओनली दिस सेल्फ रीड, टेक 2 minutes, सब पढ़ेंगे एक बार, फिर मैं पूछती हूँ आपसे।
गाइस क्लियर? पढ़ा? Yes, ma'am. समझ में आया सबको? क्लियर? हम आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े, दीप्ति आगे बढ़े। हाँ जी मैम। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, हमने ये भी कर लिया ना, ये डिफरेंस बिटवीन सुपर स्पेशलिटी एंड मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल, किया था ना आपने लास्ट टाइम Yes, एक्चुअली? ma'am. हाँ, Yes, क्योंकि ma'am. हाँ ठीक है, गुड। ओके, देन वी हैव स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू पीपल. Span of control can be defined as the total number of direct subordinates that a manager can control or manage. Means एक पर्सन के अंडर आप कितने लोग डालते हो काम कराने के लिए, वो हो जाता है आपका span of control. Like for example, if I'm handling a class of 20 people, the span of control for the class would be 1:20. ठीक है? So, like जैसे इन्होंने example दिया, manager can manage 4 to 6 subordinates when the nature of work is complex, whereas the number can go up to 15 to 20 subordinates for repetitive or fixed work. Means अगर आपका काम बहुत challenging है, बहुत complex है, जिसमें lot of supervisions की जरूरत है, आपको बार बार गाइड करना पड़ा है, तो वहां आपके अंडर कम लोग होने चाहिए, which is very obvious, राइट? और अगर जैसे जैसे आपका नॉर्मल काम होने लगे या रेपिटेटिव काम होने लगे, फिक्स काम होने लगे, देन इन दैट केस योर नंबर ऑफ पीपल कैन गो हाई. इट कैन गो अप टू 15, 20, 30, 40, जैसे भी आपकी. और अगर सब कुछ आपका फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है, आप कब लॉग इन कर रहे हो, कब लॉग आउट कर रहे हो, क्या क्या काम कर रहे हो, वो सारी चीज सिस्टम में रिकॉर्डेड है. तो मेरे अंडर अगर आप 100 लोग भी डाल दोगे तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मैंने एक बटन प्रेस करना है एंड आई विल एक्सट्रैक्ट अ रिपोर्ट. एंड और अगर कोई अपने परफॉर्मेंस फॉर एग्जाम्पल किसी का बिलो एवरेज है, तो सिस्टम इंडिकेशन दे रहा है, रेड बार दे रहा है, तो समझ में आ गया कि यहाँ इन लोगों का रेड बार है, इनको बोला जाए. So system से ही उनको रिपोर्ट चली गई कि that your performance is not up to the mark. So in that case you can handle like quite a good number of people under you. ठीक है? तो स्पैन ऑफ कंट्रोल बेसिकली होता क्या है कि एक मैनेजर के अंदर कितने लोग डाल रहे हैं और कितने बंदे एक बंदे के अंदर आने चाहिए, डिपेंड करता है उसका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क पे. ठीक है? क्लियर है गाइस? यस मैम। Okay. So, span of control is popularly used in business management and human resource management because this item is related to management and controlling employees. So, the meaning of word is total number of subordinates that a manager or a supervisor can manage. ठीक है? अच्छा. Now, there are several factors which will affect the span of control, such as the nature of work, capability of manager, capability of employee to be managed, responsibility of manager. So इन सारे factors पे आपका depend करेगा कि आपका control span of control कितना होना चाहिए. It can be of two types, such as a narrow and a wide span of control. ठीक है? Wide span कब कहलाता है? When a manager manages 2 to 4 सॉरी, नैरो कब कहलाता है? जब 2 to 4 सबऑर्डिनेट्स होते हैं. और ज्यादा बड़ा कब कहलाएगा? वाइड कब कहलाएगा? जब आपके नंबर ऑफ पीपल ज्यादा होंगे. अब इसके फायदे क्या होते हैं? स्पैन ऑफ कंट्रोल के क्या फायदे हैं नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल के? पहले चलो, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या बोला हुआ है ना, द मैनेजर कैन सुपरवाइज ईच ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स इंटीमेटली. द नेचर ऑफ वर्क इज यूजुअली कॉम्प्लिकेटेड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द सबऑर्डिनेट्स एंड देयर मैनेजर एंड मोर लेयर्स इन द हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट. जब आपका नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल रहता है, यानी कि बहुत कम कम लोग एक एक बंदे के अंडर आएंगे, तब क्या होगा? एक तो क्विक कम्युनिकेशन होगा, कॉम्प्लिकेटेड काम प्रॉपरली हैंडल हो जाएगा. ठीक है? काफी लेयर्स रहेगी, हायरार्की रहेगी मैनेजमेंट के अंदर, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहेगा बिटवीन द मैनेजर एंड द सबऑर्डिनेट, क्योंकि उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन चल रहा है. नाउ डिस्पाइट मेनी एडवांटेजेस, उसके काफी डिसएडवांटेजेस भी होंगे नैरो के. कैसे? कि बहुत ज्यादा, एक तो जब बॉस और सबऑर्डिनेट्स बहुत क्लोज काम करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग अप्रोच फॉलो की जाती है, राइट? तो वहां पर क्या होता है कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उन लोगों को लगता है कि हम अपना ओपिनियन नहीं दे पा रहे, हम अपनी क्रिएटिविटी यूज नहीं कर पा रहे, हम अपना एक्चुअल जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है वो तो हम कर ही नहीं पाते, बिकॉज हमारे को बार बार कमांड मिलती रहती है. ठीक है?
बहुत ज्यादा जब हायरार्की के लेयर्स डेवलप हो जाती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो कोई भी काम, कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि आपको बहुत सारे चैनल से गुजरना पड़ता है. देन वी हैव नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोलिंग प्रिवेंट्स क्रॉस फंक्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग. ऑब्वियसली जब बहुत ज्यादा क्लोज होता है मैनेजर, उसके अंडर 2-3 लोग ही काम कर रहे हैं, बार बार उनमें आपस में डिस्कशन चल ही रहा है, तो कहीं ना कहीं जो इंटर डिपार्टमेंटल या क्रॉस फंक्शनल, यानी कि मैनेजमेंट वाले, प्लानिंग वाले कंट्रोलिंग से बात कर रहे हैं, या फाइनेंस वाले मार्केटिंग से, वो उस तरह के डिस्कशंस का स्कोप बहुत कम हो जाता है. ठीक है, तो इस तरह के डिस्कशंस नहीं होंगे तो ऑब्वियसली क्रिएटिविटी नहीं होगी. ओवरऑल मैनेजमेंट को समझना, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कहाँ गलतियां आ रही हैं, कहाँ हमारे वीक पॉइंट्स हैं, उन पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं होंगी ना आपस में, जब कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन उस चीजों का नहीं है. अच्छा, अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल की. वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट्स काफी फ्री फील करते हैं, हायरार्की बहुत कम होगी, नेचर बहुत, काम का नेचर रेपिटेटिव होता है, और डायरेक्शन कम मिलती रहती है ना, क्योंकि कम्युनिकेशन भी कम रहता है सबऑर्डिनेट्स और मैनेजर्स में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं एक मैनेजर के अंडर काम करने के लिए. लेकिन जहाँ डिसएडवांटेज की बात करें, जब बहुत सारे लोग होंगे तो ऑब्वियसली इनफेक्टिव मैनेजमेंट भी होगा, आपका वर्कलोड बहुत बड़ा रहेगा मैनेजर के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हैंडल करना है. देन कई बार काम प्रॉपरली आप डिफाइन नहीं कर पाते अपने लोगों को, कि इतने सारे लोग हैं, कभी कोई कुछ, कभी कोई कुछ, कभी कोई कुछ. देन कम्युनिकेशन जो है मैनेजर्स सबऑर्डिनेट्स के बीच में बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से ओवरऑल कंट्रोल मैनेजर का सब लोगों के ऊपर कम हो जाता है. सो दैट कैन ऑल्सो लीड टू अ ineffective management or a loss of any decision, or loss of any resource, or maybe a delay in the decision, or maybe a wrong decision, है ना. ये सारी चीजें की हमारी डिसएडवांटेजेस होंगी जब हमारे पास वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा. ठीक है, ओके. यस मैम. अब हम ये देखेंगे कि जब हम स्पैन ऑफ कंट्रोल डिफाइन करते हैं अपनी मैनेजमेंट के अंदर, कि कितने लोग कितना काम करेंगे, किसके अंडर कितना काम आएगा, या मतलब कितने लोग आएंगे, तो वो हम कैसे करेंगे. तो उसके लिए हम लोगों को पहले उसके फैक्टर्स को समझना पड़ेगा. ठीक है, कौन से फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना है, ताकि हम ये डिसाइड करें कि कैसे कैसे एलोकेट करना है, कितना कितना काम का एलोकेट करना है एक सुपरवाइजर को इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग पीपल. ठीक है, देखो अभी हमें लग रहा होगा कि ये बहुत नॉर्मल चल रहा है, बहुत आराम से इजी टॉपिक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करने बैठते हैं ना, तो अगर आपने सब पढ़ा हुआ है कंसेप्चुअली और आपको आता है, तो आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं. अदरवाइज क्या होता है, आपकी जो भी आपका मैनेजमेंट है वो फ्लॉप हो जाएगा. ठीक है, चलो फैक्टर्स पे बात करते हैं. सबसे पहला फैक्टर है टाइप ऑफ वर्क टू बी मैनेज. ये हमने पहले भी बात करी थी कि किस तरीके का काम है. अगर बहुत कॉम्प्लेक्स काम है, बहुत क्रिटिकल काम है, तो बहुत कम लोग आपके अंडर होंगे, या हमें रखने चाहिए, मतलब 2-3 लोग एक सुपरवाइजर के अंडर. लेकिन जब आपका काम रिपीटेटिव है, इजी है, फिक्स्ड है, सब टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्रोल है, तो उसमें आप अपनी जो स्पैन ऑफ कंट्रोल का नंबर है वो ज्यादा रख सकते हो. ठीक है, देन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर आपके ब्रांचेस बिजनेस के बहुत ज्यादा दूर दूर लोकेटेड हैं, ठीक है, और वहां पर आपको मतलब लोगों को आपस में मैनेज करने के लिए जो जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, राइट, वो बहुत दूर है, टेक्नोलॉजी के मैकेनिज्म्स आपके वीक हैं, तो उस केस में आप कम लोग डालोगे. और अगर आपके पास ज्योग्राफिकल इश्यूज नहीं है, सेम प्लेस पर सेम ऑफिस के अंदर लोग काम कर रहे हैं, वहां पर हम अपना स्पैन ऑफ कंट्रोल बड़ा रख सकते हैं. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ये वाला कौन बताएगा मुझे, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म बाय मैनेजर. नैन्सी. मैम कुछ टास्क तो हर डिपार्टमेंट के अपने मतलब एडमिन स्टाफ के फिक्स होते हैं कि उनको वो करना ही करना है, तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बाकी उसकी तो कम हो जाती है.
ओके। लाइक मैम एचआर का डेली रूटीन टास्क होता ही है मीटिंग्स मीटिंग्स करना। का, मॉर्निंग मीटिंग्स होती हैं जो हाँ हर एम्प्लॉय मतलब हर डिपार्टमेंट के एचओडी से उसकी अगर कंप्लेंट्स हैं तो वो डिस्कस करना, हाँ, तो उस केस में उनको रिजॉल्व करवाना। ओके, तो उस केस में स्पैन ऑफ कंट्रोल बड़ा रखोगे छोटा? मैम छोटा 1-on-1 बात होगी ना। एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। सो उस केस में क्योंकि हमारे पास मीटिंग्स हैं, हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल एनालाइज करने हैं, उनके इश्यूज देखने हैं, उनको काउंसिल करना है, तो उस केस में हम स्पैन ऑफ कंट्रोल कम रखेंगे। ठीक है। और अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल सिस्टम में हमें अटेंडेंस लगा देनी है सबकी, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, जो हमें इंफॉर्मेशन सीधा सिस्टम से मिल गई, या सैलरी कैलकुलेशन हमारे पास ऑलरेडी आई हुई है, आपको सिर्फ ट्रांसफर करनी है, तो वो भी एक आपका प्रोसेस, एक सिस्टम प्रोसेस डिफाइन है। तो इन सारे बेसिस पे जो आपको वो मिलेगा, जो कास्ट स्पैन ऑफ कंट्रोल मिलेगा वो ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि आपका 1-on-1 इंटरेक्शन बहुत कम है, सिस्टम के थ्रू काम कर रहे हैं, एक मोनोटोनस और रेपिटेटिव टास्क है, तो वहां पर हम स्पैन ऑफ कंट्रोल कम कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है केपेबिलिटी ऑफ मैनेजर। ऑब्वियसली आपके जो मैनेजर, जो लोग लोगों को मैनेज करें, वो कैसे हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी है, उनकी हैंडलिंग स्किल्स कैसी है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपका जो भी आपका मैनेजर है या उसको हम कितने लोग दे सकते हैं। ठीक है। देन रीजनेबिलिटी ऑफ द अदर टास्क, सॉरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अदर टास्क। फॉर एग्जांपल आप अपार्ट फ्रॉम handling people, if you have some other important task also, like for example आप मैनेजमेंट के साथ बैठ के कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स पे काम कर रहे हो, या आप स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो, या आप किसी एक्सपेंशन प्लान पे काम कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके पास और भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है जो बहुत क्रिटिकल है, तो उस केस में आप स्पैन ऑफ कंट्रोल छोटा रखोगे। ठीक है, ठीक है गाइस। यस मैम। यस मैम। ओके, देन वी हैव मैनेजर्स वैल्यू एडिशन। ऑब्वियसली ये भी देखोगे कि आपका जो मैनेजर है जिसके अंडर आप लोग डाल रहे हो, उसका वो खुद कितना वैल्यू एडिशन लाता है लोगों में, हाउ केपेबल ही इज टू ट्रेन द पीपल इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ वैल्यू एडिशन अमंग द पीपल whom he is हेडिंग, राइट, और ही इज मैनेजिंग। सो अगर उसका वैलिडेशन काफी अच्छा है, ट्रेनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, डेवलपमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लोगों को मैनेज करने में इज वेरी गुड, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, सब चीजें बहुत अच्छी हैं, तो आप अपना स्पैन ऑफ कंट्रोल उनका बड़ा रख सकते हो। लेकिन अगर आपको ये स्किल्स की कमी लगती है, देन इन दैट केस आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल छोटा रखना पड़ेगा, आपको खुद छोटा ही डिफाइन करना पड़ेगा। देन टाइप्स ऑफ बिजनेस। अब किस तरीके का बिजनेस, क्या क्रिटिकल बिजनेस है या नॉन क्रिटिकल बिजनेस है? अब जैसे डॉक्टर्स है ना, जो प्रॉपर ओटी के अंदर आपके क्या नाम है, आपके सर्जरीज कर रहे हैं या कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं या प्रोसीजर्स कर रहे हैं, आपने देखा होगा उनके साथ एक या दो लोग ही होते हैं एसोसिएटेड। आपने कभी ये चीज एनालाइज की है? उनकी टीम में या उनके साथ 2-3 लोग ही एसोसिएटेड होंगे, उनके ऊपर जो जो एडिशनल काम है वो बहुत कम डाला जाता है। व्हाई? मैम बिकॉज दे आर ऑलरेडी डूइंग द क्रिटिकल जॉब। वेरी गुड। सो उनका काम ही जो है वो खुद में ही इतना क्रिटिकल है, उनका जो वर्क है, उनका जो बिजनेस है वो इतना क्रिटिकल है कि वो 2 या 3 लोगों के साथ ही उसको डिस्कस कर ले, वही बहुत है। ठीक है, सो देयर स्पैन ऑफ कंट्रोल विल बी वेरी स्मॉल। ठीक है, ओके। अच्छा, ओके। सो इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल डिफाइड होगा। ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक आपका आया हुआ है ट्रेड थ्योरी, एग्जाम में भी आया हुआ है काफी, इसको पहले खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रिंसिपल्स पे चलेंगे। ठीक है, चलो बिफोर आई स्टार्ट, एक बार आप ये लोग यहाँ से ट्रेड थ्योरी को यहाँ से यहाँ तक, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, विजिबल टू ऑल?
स्ट्रेंथ पे नहीं, बस यहाँ तक। हेलो, ये यहाँ तक पढ़ना है अभी। ओके, टेक 5-10 मिनट्स, क्योंकि ना इसके ऊपर रिपीटेटिवली एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और अब क्योंकि एमसीक्यूज भी आते हैं तो थोड़ा सा घूम के भी आ सकता है। तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ो। इसको और हाईलाइट करूं क्या मैं? गाइस विजिबल? Yes, ma'am. ठीक है, टेक 5-7 मिनट्स, इसको अच्छे से पढ़ो, और इसके ऊपर एंड वील हैव अ गुड डिस्कशन। टेक 10 मिनट्स, पढ़ो इसको अच्छे से।
ओके, किया अभी पढ़ा? Are you guys done? Nancy, Dipti? Yes, ma'am. Okay. Nancy? Nancy, are you there? Nancy? Okay. So Dipti, can you explain, like summarize what you have read? Yes, ma'am. इसमें जो ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप है वो एक साइकोलॉजिकल ट्रेड ज्यादा बताया है कि कुछ लोगों में कुछ एक्स फैक्टर होता है जो उनको लीडर बनाता है, चाहे वो फिजिकली उनकी पर्सनालिटी हो या फिर उनकी इंटेलिजेंस हो या ये सब चीजें, ये सब अब बोला गया है इसमें। मतलब Okay. ये सब क्वालिटीज उन्हें बाकियों से अलग करती है और उन्हें लीडरशिप क्वालिटी देती है। गुड। सो बेसिकली क्या आप बोल रहे हैं कि जो ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप है वो ये बोलती है कि apart from your skills that upgrade through qualification, through trainings and development, there are also important factors which are going to impact the leadership skill or leadership style of a person, and it is going to impact your team members, your people whom you are influencing. So in that case, your personality, your physical factors, your mindset, your thought process, all these factors will also work to influence the follower and getting your work done or motivate people in order to perform, right? बोल रहे हैं कि साइकोलॉजी में आपका जो ये ट्रेड थ्योरी को हम लोग डिस्पोजिशनल थ्योरी भी कहते हैं,
और ये ह्यूमन पर्सनालिटी के ऊपर काम करने वाली थ्योरी है। इसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि भाई सामने वाले का कैसा बिहेवियर है, थॉट प्रोसेस कैसा है, क्रिएटिविटी कैसी है, इमोशनल स्ट्रेंथ कैसी है, और इन सारे बेसिस पे फिर वो हम डिफाइन कर पाते हैं कि ये किस तरह से हमारी लोगों को मैनेज करेंगे। ठीक है। अच्छा, कह रहे कि कौन से जो है प्रिंसिपल्स हैं, 5 प्रिंसिपल्स हैं ट्रेड थ्योरी के। दैट इज ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कंसेंससनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। क्या होते हैं ये? कौन बताएगा? क्लास साइलेंट हो गया। अच्छा, मैम ओपननेस टू एक्सपीरियंस मतलब क्लोज पर्सनालिटी का इंसान ना हो, जो सीखना चाहे, जिसको ये है कि एक्सपीरियंस लेना चाहे। कंसेंससनेस मतलब क्या होता है, जो अपने अंदर से होता है कि अगर कोई उन्हें टास्क दिया जाए तो वो मतलब अपने 100% दे के वो कंप्लीट कर सके। एक्सट्रोवर्जन मतलब ओपननेस, मतलब अपने अंदर चीजें ना रख के बाहर मतलब एक्सप्रेस करने वाला हो। वेरी गुड। एग्रीएबलनेस मतलब कोई अगर अच्छे सजेशंस या अच्छी कुछ सीखने को आपको मिल रहा है तो आप उसमें एग्री करने वाले हो, अपने पे स्टिफनेस ना हो कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वही है। न्यूरोटिसिज्म मतलब मतलब पॉजिटिव साइड में देखना तो वैसे न्यूरोटिसिज्म इज नेगेटिव वर्ड, पर इसका एक पॉजिटिव साइड देखना कि आप किसी गलत चीज के लिए आप एंशियस हो और आप उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड, very very apt meaning of this here. Like, I mean, you have a thought process in order to protest something negative happening around you, right? So that sort of approach is neuroticism. ठीक है। और इसमें हम लोग यही नहीं, हम लोग दूसरा एंगल भी देखते हैं कि कोई बंदा कितना नेगेटिव हो सकता है, कितना उसका खुद का कितना एंगर हैंडलिंग है। तो ये सारी चीजें भी आपकी ट्रेड थ्योरी की प्रिंसिपल्स में आ जाएंगी। ठीक है। ओके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ कोर ट्रेट्स, जिस जो हमने यहाँ पे डाले हैं, कोर ट्रेट्स जो हमें आइडेंटिफाई करने हैं जब भी आप कभी ह्यूमन साइकोलॉजी पे काम करोगे, एंड देन वर्क ऑन द ट्रेट थ्योरी ऑफ अ पर्सन, यू विल वर्क ऑन दीज फैक्टर्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन जब भी आप अपना एनालिसिस करने जाओगे किसी का ट्रेट थ्योरी का, तो आप उसके कौन से कोर ट्रेट्स पे काम करोगे। फर्स्ट इज अचीवमेंट ड्राइव, जहाँ पे कि कितने लेवल का एफर्ट सामने वाला डाल सकता है, उसकी एनर्जी कैसी है, किस तरह का इनिशिएटिव लेता है या लेती है, एंड हाउ इंटरेस्टेड somebody is to टेक द इनिशिएटिव। देन वी हैव लीडरशिप मोटिवेशन। So that means there's an intense desire to lead others to reach out the shared goals, like whatever is the organization goals or the shared goals, उसको हम मीट करने के लिए कितना लीड लेते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, या कितना लोगों को इन्फ्लुएंस करने में हम लोग एक्चुअली इंटरेस्टेड है, या हमारी इंटेंशन है। देन हमारे अंदर हम कितने ऑनेस्ट है, और हमारा इंटीग्रिटी लेवल कैसा है। सो एम आई अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, एम आई रिलायबल, एम आई ओपन। सो व्हेन यू एनालाइज दीस ट्रेट्स, इवन दूसरों के लिए भी, तो आप ये चेक करोगे, इज ही ट्रस्टवर्दी, रिलायबल, और इज ही ओपन। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि सामने वाले का सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, वो अपने आप में कितना विश्वास रखता है, अपने आइडियाज और एबिलिटी में कितना विश्वास रखता है। देन कोग्निटिव एबिलिटी क्या होता है, मीन्स सबके साथ आप कैसे बिहेव करके और एक कॉन्क्रीट डिसीजन पे आते हो, सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, सबको एग्री करा के, राइट। सो you are capable of exercising a good judgment, strong analytical abilities, and conceptually you are very skilled conceptually, like you have the understanding of the concepts that is applied or used in your work. Then knowledge of business, so knowledge of industry and other technical matters पे आपका कितना, आपका कमांड है, कितनी आपको वो चीजें आती हैं। देन इमोशनल मैच्योरिटी, कि आप कितने वेल एडजस्टेड हो, आप किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से तो कोई सफर नहीं कर रहे। देन आप कितने क्रिएटिव हो, आपकी पर्सनालिटी में कितना करिश्मा है, कैरिस्मेटिक हो, आपके आपके इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप फ्लेक्सिबल हो या नहीं हो। ये सारी चीजें पे जो हम मींस व्हेन यू एनालाइज somebody's and then understand, trying to understand a trait theory,
try to understand the traits of a person. These are the important features on which you will work in order to analyze the overall score of a person, overall stand of a person. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब जब हम देखो सोचते हैं कुछ हम लोग ट्रेड थ्योरी ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, पर एक्चुअली उसको जॉट डाउन करना, उस पर उसको एनालाइज करना और उसके बाद फाइनली उसका आउटपुट निकाल के देना, ये जो प्रोसीजर है उसमें आपको ये जो ट्रेड थ्योरी के हमने डिफाइंड ट्रेड्स की बात करी है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, स्ट्रेंथ या एडवांटेजेस क्या होंगे ट्रेड थ्योरी के? नेचुरली प्लीजिंग थ्योरी है, वैलिड रहेगी बहुत सारे रिसर्चेस के लिए, जहाँ पे हमें ये डिफाइन करना होगा कि भाई किस तरह के लोग होंगे, किस तरह की पर्सनालिटी है उन लोगों की, फिर किस तरह की लीडरशिप हैंडल किए जाएंगे, किस तरह की लीडरशिप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उन लोगों से जो लोग आपके लीडरशिप की पोस्ट पे हैं, राइट. फिर उसके बाद आपको डिटेल और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग पता चलती है आपके लीडर्स के, उनके ट्रेड्स की. लिमिटेशंस कैसी हैं कि कई बार आप लोग जैसे कि एक somebody is a गुड लीडर और सक्सेसफुल लीडर, वो जो कैटेगराइजेशन है उसको करने में हमारी कई बार हम जजमेंटल हो जाते हैं, या हम लोग कभी कभी रॉन्ग एनालिसिस भी दे सकते हैं, तो वो थोड़ा सा बायस भी हो सकता है. ठीक है, द लिस्ट ऑफ पॉसिबल ट्रेड्स टेंड टू बी वेरी लॉन्ग. कह रहे हैं ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट होती है, लेकिन इसलिए कई बार हम सिर्फ इन्हीं बेसिस पे, जो हम लोगों ने अभी कोर ट्रेड्स की बात करी, इसी बेसिस पे अपनी डिफाइंड जो स्ट्रेंथ है या डिफाइंड जो एनालिसिस है कई बार वो क्लियर नहीं होता. ठीक है, देन कभी कभी आपको कुछ फैक्टर्स में जो आप हम ट्रेड थ्योरी में एनालाइज कर रहे हैं उसमें आपको लोगों का क्या एग्रीमेंट ना मिले, डिसएग्रीमेंट मिले. उसके बाद इस मॉडल में जो है इट्स रिलेट टू फिजिकल ट्रेड्स, जैसे कि आपकी हाइट, वेट, ये सब चीजें भी, मतलब क्योंकि फिजिकल फैक्टर्स भी हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि फिजिकल फैक्टर्स मैटर नहीं भी करते. ठीक है, और ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के एनालिसिस हैं, ह्यूमन ट्रेड्स पे एनालिसिस हैं, पर्सनालिटी पे एनालिसिस हैं, तो ये जो टास्क है ये वो बहुत कॉम्प्लेक्स भी है. ठीक है, अगर हम इम्प्लीकेशंस की बात करें तो ऑब्वियसली ये बहुत जगह, हर जगह पे इम्प्लाइड होगा, आपके हर लेवल पे इम्प्लाइड होगा, हर लोग, हर पर्सन पे इम्प्लाइड होता है. सो इट इज लाइक यू विल फाइंड इट एवरीवेयर. ठीक है, देन वी हैव द अदर टॉपिक विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल के. अच्छा, कई बार क्या होता है कि इसमें से ना कोई एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल उठा के आ जाता है, तो उसमें से भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. वैसे इसमें से एक दो क्वेश्चंस बन जाते हैं. ठीक है, चलें करें, इसको स्टार्ट करें. नैन्सी, यू देयर नाउ? Yes, ma'am. ओके ओके, राइट. शैल वी स्टार्ट दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? Yes, ma'am. ओके, चलो. 14 प्रिंसिपल्स हैं आपके हेनरी फ्योल के. सबसे पहले बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर क्या बोलता है कि काम को ना हमें डिवाइड कर देना चाहिए लोगों में. ठीक है, कि किसकी कैसी स्पेशलिटी है, किसकी कैसी एफिशिएंसी है, उसके बेसिस पे हमें काम को डिफाइन कर देना चाहिए. उन्होंने बोला कि हर बंदा हर काम अच्छे से नहीं कर सकता, और सब में सब लोग सब काम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग कुछ काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं. बट वो कौन सा काम अच्छा कर पाएगा, डिपेंड्स ऑन द स्किल्स, depend on the capability, depends on the trainings that they had, even on the qualification also. Like for example, अगर मैं फाइनेंस की बंदी हूँ, तुम मुझे बोलो कि जाके किसी का सर्जरी कर दो, तो भाई ये तो कुछ ही अलग ही कहानी हो जाएगी, है ना. It will lead to lot of रॉन्ग डिसीजंस. करेक्ट. सेम आपका ऑर्गेनाइजेशंस में भी है. अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल somebody is very good at कंप्यूटर वर्क, सिटिंग वर्क, उसको फील्ड में भेज दोगे तो वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रेड्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्पेशलिटी, एंड देन यू हैव टू डिफाइन द लेबर. लाइक डिवीजन आपका होना चाहिए. फिर पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. हेनरी फ्योल ने बोला था कि जब भी आप किसी को काम देते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते, तो उसके साथ उसको आपको थोड़ी सी अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी. जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, इफ आई हैव टू टीच समथिंग टू यू पीपल, आई शुड आल्सो गेट एन अथॉरिटी wherein I can maybe scold somebody in my team, or maybe at least correct them when they are going wrong. So मेरे पास वो अथॉरिटी है. अगर मेरे बोले सिर्फ आपने पढ़ाना 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 है, आपने किसी को कुछ बोलना नहीं है, चुपचाप पढ़ाते जाओ,
आप कोई कंट्रोलिंग टेक्निक्स यूज मत करो अपनी क्लास में, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एग्जीक्यूट करना। सेम इज विथ ऑर्गेनाइजेशन। आप मैनेजर को फॉर एग्जांपल आपने लोग दे दिए 15 कि इन 15 लोग आपके अंडर हैं, बट अगर वो उन 15 लोगों को सिर्फ डेलीगेट करेगा या काम देगा या कंट्रोलिंग नहीं करेगा आपका मैनेजर, सो ऑब्वियसली इट विल नॉट लीड टू एन इफेक्टिव मैनेजमेंट। और दूसरी बात यह है, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, ठीक है, और अपना अथॉरिटी नहीं देते हो, तो जो आपका मैनेजर है वो ओवरबर्डन हो जाएगा, क्योंकि लोग जो है उसको काम करें नहीं करें वो तो वहां पे उस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजर के ऊपर आ रही है, लेकिन काम करवाना है तो आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। और सिर्फ अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, ये ज्यादा अथॉरिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो भी प्रॉब्लम। ज्यादा अथॉरिटी होगी तो बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सा लीडर हो जाएगा, बड़ा डंडा 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 वाला लीडर हो जाएगा, है ना। So you have to have a balance of responsibility and authority, which is known as parity of responsibility and authority। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ वन बॉस। प्रिंसिपल ऑफ वन बॉस क्या बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारे लोगों से कमांड आ रही है, बहुत सारे लोगों से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, ये वाला बॉस बोलता है ऐसे करके, तो वाला बॉस, आप कहोगे यार मैं इसकी सुनूं उसकी सुनूं। वी शुड हैव वन पर्टिकुलर पर्सन हु विल बी guiding you and who will also be giving the instructions to you to handle. So there should be a one boss. Then we have unity of direction. Unity of direction का मतलब क्या है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो एक उससे गुजरे, एक तरीके से गुजरे, मतलब एक डायरेक्शन से गुजरे, ठीक है। उसमें आपको मल्टीपल डायरेक्शन से आपकी इंफॉर्मेशन ना आए, ताकि आपको भी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पता रहे। देन वी हैव अच्छा, एक ना ये आपको कई बार यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में डिफरेंस आ जाता है कभी कभी। तो यूनिटी ऑफ कमांड मतलब जो ऊपर से ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं, डायरेक्शन का मतलब क्या है कि एक पर्सन उसके अंडर जो है ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज और लोग आ गए हैं, ऑब्जेक्टिव्स आ गए हैं, तो वो आपका डायरेक्शन, मतलब मेरे को जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्शन मिल रही है, तो मेरे को एएचएमएस से अगर एक कोऑर्डिनेटर उन्होंने असाइन किया तो वही मुझे डायरेक्शन है कि मैडम ये क्लासेस हैं, ये सिलेबस है, ये टाइमिंग है, ठीक है, ये आपकी क्लास की स्ट्रेंथ रहेगी। अच्छा, फिर वो हो गई आपकी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर कमांड में हम लोग क्या बात करते हैं, फंक्शंस ऑफ पर्सोनल्स, मींस लोगों से रिलेटेड, यहाँ पे काम से रिलेटेड, डिपार्टमेंट से रिलेटेड डायरेक्शन में बात करें तो। फिर यूनिटी ऑफ कमांड में एक नेसेसरी है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में इट इज नेसेसरी फॉर साउंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है आपको फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो वो तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। नाउ यूनिटी ऑफ कमांड में क्या कह रहे हैं कि फायदे क्या रहेंगे इसके, भाई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, कंफ्यूजन नहीं होगी, एक ही जगह से इन्फॉर्मेशन आ रही है। डायरेक्शन में क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, या डुप्लीकेशन एफर्ट्स नहीं होंगे, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सीमा से भी इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ, मैं तौफीक से भी ले रही हूँ, मैं मिराज सर से भी ले रही हूँ, मैं किसी और से भी ले रही हूँ, तो काम तो एक ही काम है, वो डुप्लीकेट भी हो रहा है, वेस्ट ऑफ एफर्ट्स हो रहे हैं सबके, ठीक है। देन यूनिटी ऑफ कमांड में रिजल्ट क्या, इट लीड्स टू better superior subordinate relationship, और unity of direction it leads to smooth running of the enterprise, ठीक है। ये थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट है, ये आपका जो डिफरेंस है। ओके, नाउ वी हैव इक्विटी। इक्विटी क्या बोलते हैं, इक्विटी का प्रिंसिपल बोलता है, हेनरी ने बोला कि सभी लोगों को एक फेयर और एब्सोल्यूट टर्म्स में सेम बिहेवियर या फिर सेम तरीके से हैंडल करना चाहिए। मींस कहने का मतलब ये है कि कहीं किसी की तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो इन टर्म्स ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट, एज, ये सब चीजों के बेसिस पे हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंट्रोल नहीं करेंगे, लोगों को कंट्रोलिंग रहेगी। यहाँ पर हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फेयर ट्रीटमेंट्स, ठीक है, बायस तरीके से नहीं हैंडल करेंगे। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं ऑर्डर। ऑर्डर कह रहे हैं कि फ्योल ने बोला कि हर चीज के लिए ना एक जगह बनी होती है, एक पोजीशन बनी होती है, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हो रहा है, तभी आपके ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट स्ट्रांग रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके बुक्स है तो उसके लिए एक आपके हॉस्पिटल में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनी होनी चाहिए, जहां पर लोग आके रीड आउट कर रहे हैं चीजों को, है ना। या कोई रिसर्च होनी है तो उसके लिए एक रिसर्च सेंटर बना होगा, या आपका कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइज
ट्रीटमेंट है, जैसे अगर आई केयर है तो उसके लिए आपका आई डिपार्टमेंट होगा, आपका ईएनटी में चले जाओ, या फिर अगर आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड है तो आपके जो काउंसलर्स का अलग डिपार्टमेंट है, वहां जाके वो इन्फॉर्मेशन लेंगे, है ना। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर ही नहीं बल्कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको अपने मटेरियल के लिए, अपने लोगों के लिए अपना एक ऑर्डर क्रिएट करना होता है। ऑर्डर मींस, ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि ऑर्डर देना, ऑर्डर का मतलब एक सिस्टमैटिक जगह डिफाइन करना, एक सिस्टमैटिक अप्रोच डिफाइन करना, ठीक है। देन वी हैव डिसिप्लिन। फ्योल ने बोला कि डिसिप्लिन होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मस्ट है। मीन सिंसियरिटी, ओबीडियंस, रिस्पेक्ट फॉर ऑफ अथॉरिटी एंड ऑब्जर्वेंस, ये सारी चीजें आपके लिए होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसको स्मूथली रन करने के लिए। देन वी हैव इनिशिएटिव। कह रहे हैं कि जो भी वर्कर्स हैं, जो भी आपकी स्टाफ हैं, है ना, उनको हमें एनकरेज करना है ताकि वो इनिशिएटिव ले सकें, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेटिव एक्शन ले कर सके, और उनको इसके लिए आप मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी तरह के इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करो। देन वी हैव फेयर रेम्यूनरेशन। फेयर रेम्यूनरेशन बोलते हैं कि भाई सबको बहुत इक्वली, इक्वली का मतलब ये नहीं कि सबकी सैलरी बराबर, इक्वली का मतलब है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज उनका रेम्यूनरेशन डिसाइडेड होना चाहिए, ठीक है। देन वी हैव स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। Okay, now stability of tenure. That means when you're moving people from one position to other position or a department to another department, you should have a stable tenure. Stable tenure as in, for example, अगर आप किसी को different departments से train कराना चाहते हो, like for example, if you want to train somebody into marketing and finance and HR also, then ऐसा नहीं कि कभी भी किसी को HR में move कर दिया, कभी भी किसी को, you should have a specific tenure which is defined, which is predetermined before you take further movement or further decision. For example, अगर आपको किसी को marketing department train करना है and then you want to send that person to HR, तो अगर आपका 2 months का period है तो उसको 2 months पहले marketing में train होने के लिए आपको allow करना पड़ेगा, right? That means once you have a stability of tenure, then people would have this mindset that the efforts, the responsibility, accountability, authority, all these things will be properly defined for them, and they would also be aware कि भाई मुझे अब ये deliver करना है, मुझे ये responsibility है, ये सारी चीजें पहले से ready रहेंगी, ठीक है। Got it? Guys, is that clear to you? Yes, ma'am. Okay, okay. Then we have one more important, which is scalar chain. Okay, तो scalar chain आपका क्या रहता है? It's a basically a channel through which the chain of supervisor ranging from ultimate authority to the lowest. So आपके मतलब अगर आप communication की बात करें, and then if you look at this diagram, A to B, B to C, C to D, इस तरह से, या D से C, C से B, B से A की अगर आप डायरेक्शंस देखें, सो बेसिकली कह रहे हैं कि जब भी कोई कम्युनिकेशन होगा, जब भी कोई इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी या ऑर्डर्स या अथॉरिटीज कम्युनिकेट करेंगे, then in that case you will have to move through a systematic channel which is known as scalar chain. अच्छा, अब इसके एक छोटा सा एक एड ऑन हुआ था विच इज अ गैंग प्लान। गैंग प्लान ने क्या किया? गैंग प्लान क्या टेक्निक है? ये बोल रहे हैं कि जैसे अगर डी ने कोई इन्फॉर्मेशन ए तक पहुंचानी है तो डी हैज टू मूव टू सी, लाइक द कम्युनिकेशन विल मूव टू सी, देन टू बी एंड देन टू ए। दैट विल बी ऑफ कोर्स टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, राइट? टाइम कंज्यूमिंग होने के साथ साथ उसके इफेक्टिवनेस पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो इसीलिए गैंग प्लान एक छोटा सा टेम्परेरी अरेंजमेंट किया गया जिसके अंदर आपको 2 पॉइंट्स को आप देखोगे ना अंदर, जैसे आपका बी से जी, ई से डी कनेक्टेड है, ये उस तरह का टेम्परेरी अरेंजमेंट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में फॉर क्विक कम्युनिकेशन और फॉर क्विक डिसीजंस और फॉर क्विक इंफॉर्मेशन फ्लो, जहां पर हॉरिजॉन्टली भी आपको कम्युनिकेट करने की या डिस्कशन करने की अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बॉस ने बोल दिया कि अब तुम मेरे पास डायरेक्टली नहीं आओगे इस इंफॉर्मेशन के लिए,
10 मिनट ओके। मेरे पास ना बताओ, आप सीधा उस डिपार्टमेंट में उस पर्सन के पास डायरेक्टली चले जाओ। तो डायरेक्टली चले जाओ इसका मतलब ये है कि अब मेरे तक मत लेके आओ इन्फॉर्मेशन, आप वहां उस डिपार्टमेंट में सो एंड सो पर्सन के पास डायरेक्टली ले जाओ, विच सेज कि आपका जो ये स्केलर चेन जो हम फॉलो कर रहे थे उसमें अब गैंग प्लान जो आपका टेम्परेरी अरेंजमेंट हो गया, दैट विल ब्रेक द चैनल। मतलब वो जो हम ABCD, ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि परमानेंट ब्रेक, आपको जो टेम्परेरी अरेंजमेंट दी गई है या टेम्परेरी परमिशन दी गई आप उसको फॉलो कर रहे हो, दैट विल बी योर स्केलर चेन एंड गैंग प्लान। ठीक है, क्लियर गाइस? बहुत इंपॉर्टेंट है स्केलर चेन और गैंग प्लान, यस इसके मैम। ऊपर क्वेश्चन आता ही है। ठीक है जी, आगे बढ़े। यस Yes, मैम। ma'am. Okay, next we have subordination of individual interest to general interest. ओके, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ी होती है, काफी सारे लोग काम करते हैं उसमें, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब हम क्या करते हैं इसमें, हम ये सोच के चलते हैं कि भाई हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर काम नहीं करना, हमें ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल जनरल इंटरेस्ट है उस पे काम करना है। मींस लोगों को अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ग्रुप इंटरेस्ट में कन्वर्ट कराना, सो दैट आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन रिक्वायरमेंट है, जो आपके गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो मीट हो सके। ठीक है, देन वी हैव another very important which is एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि एस्पिरिट डी कॉर्प्स बोलते हैं कि भाई हेनरी ने बोला कि लोगों के अंदर हमेशा कहीं ना कहीं डिफरेंट ट्रेड्स मिलेंगे, लोगों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज मिलेंगी, उनके थॉट प्रोसेस अलग अलग मिलेंगे। तो हम आपका ये हेनरी फ्योल ने बोला कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना है, लोगों का डायरेक्शन ऑफ मूव जो है यानी कि डायरेक्शन ऑफ वर्क जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ करवाना है, तो लोगों में हार्मनी लाना बहुत जरूरी है, लोगों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और लोगों को उनके काम के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। देन सबऑर्डिनेट्स को जो वो काम कर रहे हैं उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बिजनेस पे, उस चीज की इम्पोर्टेंस को आपको उनको एनालाइज करवाना है, उनको रियलाइज करवाना है। तो ये सारे फैक्टर्स हम एस्पिरिट डी कॉर्प्स प्रिंसिपल के अंदर लेके आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आई बिलीव सबको क्लियर ही होगा कि एक जगह पे जब सारी पावर आ जाती है वो होता है सेंट्रलाइजेशन, और डिसेंट्रलाइजेशन में थोड़ा थोड़ा बटा हुआ होता है। कहते हैं कि कभी कभी पूछा जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज होना चाहिए या डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, तो क्या आंसर होगा इसका? हम्म, क्या आंसर होगा इसका दीप्ति? व्हाट डू यू थिंक? Decentralized. नैन्सी ने बोला डिसेंट्रलाइज, दीप्ति ने क्या बोला? मैम मैं क्वेश्चन नहीं समझी आपका। मैं बोल रही हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने के लिए आपको कैसी अप्रोच होनी चाहिए, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज? मैम डिपेंड्स कैसी ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, बट स्टिल आई मीन इफ आई आस्क यू कि भाई सेंट्रलाइज होना चाहिए डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, तब आपको क्या लगता है? मैम डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। ओके, चलो अब मैं पूछती हूँ, अगर डिसेंट्रलाइज होना चाहिए और जितनी भी टॉप स्ट्रेटजीज है सब अलग अलग अपने 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 हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग लोग हैंडल कर रहे हैं,
तो क्या होगा? पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशंस। मैम फिर बाकी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो भी दिक्कत है, इसीलिए। बहुत बड़ा फ्लॉप हो जाएगा, है जी। ना? और अगर हम सेंट्रलाइज कर दे सब, सारी चीज एक ही जगह पर, सारे रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स सब एक ही जगह पर, देन तब भी प्रॉब्लम है। तब भी प्रॉब्लम है। इसलिए बोला जाता है कि कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाना है तो हमें दोनों चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉलिसीज, प्रोसीजर्स हैं, उसको आप रखो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, टॉप मैनेजमेंट के पास, ठीक है। लेकिन जो जो बहुत मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है या बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट नहीं कर रहे, डिपार्टमेंट वाइज मैनेज किए जा सकते हैं, उनको डालो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में और उसको डेलीगेट कर दो, उसको डिसेंट्रलाइज कर दो, उनको उनके डिपार्टमेंट्स में दे दो, ठीक है। जैसे कि अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड इशू है, फाइनेंस बजट्स हैं, वो आपका टॉप मैनेजमेंट के पास रखो। लेकिन अब जैसे कोई हायरिंग की बात हो रही है, जैसे ऊपर से आ गया कि चलो हर डिपार्टमेंट में 5-5 लोग हायर हो सकते हैं। अब हायर किस तरह के लोग करने हैं, किस तरह का इंटरव्यू प्लान करना है, किस तरह के राउंड्स प्लान, वो उनके डिपार्टमेंट पे छोड़ दो, है ना। यस क्लियर मैम। क्लियर हो रहा है ना? तो हमेशा ही आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। ओके, अच्छा वो ये आपका आ जाता है प्लानिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। थोड़ा सा प्लानिंग डिटेल में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक तो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। भाई आपकी जो भी प्लानिंग होगी आपकी, वो उसके गोल्स पहले से डिफाइन होने चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए। प्लानिंग का पता है हमें कि प्लानिंग जो है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, तो इसमें आपको कैस वर्क नहीं होना चाहिए, एक रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए, एक बैलेंस थिंकिंग होनी चाहिए। देन प्लानिंग में आपको काफी सारे डिसीजन मेकिंग करने होते हैं, काफी सारे चॉइसेस को, ऑल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करना होता है। देन प्लानिंग जो है वो इट्स द फंक्शन ऑफ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपको पता है कि बेसिक फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कंटिन्यूस रहेगा, आपको हर जगह पे मिलेगा, इससे एफिशिएंसी डिफाइन होगी और प्लानिंग आपकी फ्लेक्सिबल भी होती है और होनी भी चाहिए। इसके फायदे क्या होंगे? एक तो आपके ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट होंगे, आपके अनसर्टेनिटीज कम हो जाएंगी, कोऑर्डिनेशन रहेगा, लोगों का मॉरल बूस्ट अप रहेगा, इकोनॉमीज मेंटेन कर पाओगे, कंट्रोलिंग रह पाएगी, कॉम्पिटिटिव एज रहेगा आपको दूसरों के कंपैरेटिवली, और आपके यहाँ पर इनोवेशंस के चांसेस एनकरेज होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। कई बार प्लानिंग के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कई बार हम बहुत रिजिड हो जाते हैं अपने प्लान्स पे कि यही बनाया गया, यही फॉलो करना है, वहां पे भी गलत हो जाता है। कई बार हमारी प्लानिंग ही मिसडायरेक्टेड होती है, टाइम टेकिंग काम है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं इसमें कि भाई अब इसके बेसिस पे हमें ये लग रहा है तो हमें ये डिसीजन हमने बनाया हुआ है, वो भी गलत हो जाता है। देन फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि कई बार हम लोग के गलत प्लान्स की वजह से भी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पे रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ जाएगा। देन एक्सपेंसिव भी रहती है ऑब्वियसली, बहुत हाई मतलब हाई लेवल के एजुकेटेड लोग, एक्सपीरियंस लोग आप इंक्लूड करते हो, उनकी कॉस्टिंग भी काफी होती है, उनको फैसिलिटीज भी काफी सारी दी जाती है, तो ओवरऑल ये एक एक्सपेंसिव टास्क है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग की हमने बात करी थी। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं हम लोग, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एक जगह पे लेके आते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना, है ना, कि क्या क्या एक्टिविटीज होंगी। हम्म फिर डिपार्टमेंट वाइज कौन क्या एक्टिविटी करेगा, कितने लोग होंगे, अथॉरिटी किस डिपार्टमेंट के पास, किस पोजीशन पे, किस बंदे के पास क्या क्या अथॉरिटी होगी, और आपस में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का कैसा कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक टॉपिक आता है आपके पास, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि आपने अपनी पावर बांट दी, ठीक है। आप अपनी पावर जो है नीचे डेलीगेट कर देते हो, कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 5-6 चीजों के लिए अप्रूवल जाते हैं, ठीक है। तो मैंने अपने सबॉर्डिनेट को बोला कि इनमें से ये 2 अप्रूवल, इन चीज के अप्रूवल ये आप दे दिया करो। आपने अप्रूव कर दिया, इसका मतलब ये अप्रूव्ड है, ठीक है, मेरे अप्रूवल का वेट मत करो। तो वो होता है ना डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी।
इसमें आप अथॉरिटी भी डेलीगेट करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेट करते हो और अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट करते हो। क्या डिफरेंस है तीनों में? अथॉरिटी का मतलब होता है कि आप पावर दे देते हो सामने वाले को एक, कि भाई आपको कुछ गलत लगता है तो आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई उसकी जिम्मेदारी, और अकाउंटेबिलिटी भी उसकी एक्चुअली आपके ऊपर जिम्मेदारी, मतलब कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आपको पकड़ा जाएगा उसमें। ठीक है, सो दैट इज योर अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। हाँ, अच्छा, जब हमें डेलीगेशन करना होगा तो हमारे पास क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमें अथॉरिटी, मतलब हमें पहले टास्क एंड ड्यूटीज को असाइन करना होगा, किसको क्या दे रहे हैं, फिर उसके हिसाब से उनको अथॉरिटी देंगे और हम उसके हिसाब से फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करेंगे कि भाई आपको ये अथॉरिटी दी गई है, ये आपके काम है, ये आपकी ड्यूटीज है, उसके हिसाब से आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठती है, और अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो इसके लिए भी आप अकाउंटेबल होगे। ठीक है, क्लियर गाइस? दीप्ति, नैन्सी? Yes, ma'am. ओके। अच्छा, यस मैम। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी में क्या डिफरेंस है, ये भी कई बार एग्जाम में काफी आ जाता है। तो अथॉरिटी तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक राइट, लीगल राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन है, अथॉरिटी आपका एक पोजीशन से रिलेटेड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार आउट ऑफ रिलेशनशिप भी हम लोग ले लेते हैं कि चलो हम करा देंगे। अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट की जाती है सुपरवाइजर से सबऑर्डिनेट को, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट की जाती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हो जाती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है जो आपके, तो आपके सीनियर्स को ही पहले पकड़ा जाता है, चाहे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी हो। ठीक है, देन इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी टॉप फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब नीचे से ऊपर जा रही होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादातर नीचे वाले लोगों के ऊपर होती है। ठीक है, देन वी हैव स्टाफिंग फंक्शन। स्टाफिंग फंक्शन में मैंने पहले ही बताया था कि जैसे जो आपने ढांचा खड़ा किया, इतने लोग होंगे, उसकी ये पोजीशन होगी, ये अथॉरिटी होगी, ये सैलरी होगी, सारी चीजें, अब लोगों को फिल करना उसके अंदर, वो जो मतलब उसको स्टाफ करना, रिक्रूट करना, वो आपका स्टाफिंग फंक्शन में आ जाता है। इसका नेचर क्या है? ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन है, आपको हर जगह मिलेगा, परवेसिव मिलेगा, कंटिन्यूस एक्टिविटी है, आपके आपका कितना इफेक्टिव होगा आपका काम, आपके लोगों पे डिपेंड करता है। तो ये बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट नीड है ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, सही जगह, सही समय पे सही लोगों को प्लेस करना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टाफिंग का, और अगर ये सही से होती है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मूथली काम करती है। और स्टाफिंग में हर कोई इन्वॉल्व होता है किसी न किसी तरीके से। ठीक है, देन स्टाफिंग का प्रोसेस क्या रहेगा? सबसे पहले आप अपनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट देखोगे, भाई कितने लोगों की जरूरत है, कैसे कैसे लोगों की जरूरत है, उसके हिसाब से इसको रिक्रूट करोगे। मींस जो आप एडवर्टीजमेंट देते हो, या फिर आप सोशल साइट्स पर डालते हो, या फिर आप अपने ये मॉन्स्टर वगैरह की साइट्स पे डालते हो, देन उसके बेसिस पे जो भी लोग आते हैं उसके इंटरव्यूज करवा के उनको सिलेक्ट कराना, फिर उनको ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिलवाना, फिर ट्रेनिंग दिलवाना, उनकी सैलरीज वगैरह पे काम कराना, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, और उसके बेसिस पे लास्ट में क्या उनको प्रमोशंस मिलेंगे, क्या ट्रांसफर मिलेंगे, क्या रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन मिलेंगे, ये सारा आपका उसको परफॉर्म करना। तो ये सारे जो स्टेप्स है या फंक्शंस है या प्रोसेस है आपका स्टाफिंग का पार्ट हो जाता है। अब रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करते हैं, दो तरह से होती है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में हम लोग बात ट्रांसफर, प्रमोशन, री एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स एम्प्लॉइज, ये आपके इंटरनल सोर्सेज हो गए। एक्सटर्नल में हम बाहर से जो बात कर रहे हैं, मतलब फैक्ट्री लेवल पे एडवर्टीजमेंट से मिलता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से लोग मिलते हैं, एजेंसीज से मिलते हैं, देन आपके कैंपस रिक्रूटमेंट्स वगैरह वहां से मिलते हैं, कई बार रेफरल्स होते हैं, रिकमेंडेशंस होते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हमें लोग लाके देते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास रिक्रूटमेंट होती है वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में आ जाती है। द एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसेस, अब कैसे सिलेक्ट करते हो? सबसे पहले उसका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू करवाओगे, जिसमें आप देखोगे कि उसकी एलिजिबिलिटी मीट करती है नहीं करती, उसकी क्वालिफिकेशन मैच करती है नहीं करती, उसका स्किल सेट है या नहीं है। फिर वो एप्लीकेशन देता है, देन उसका आप टेस्ट करवाते हो, इंटरव्यू करवाते हो, मेडिकल एग्जाम कराते हो, और फाइनली अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हो। तो ये आपका ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद बात करते हैं हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। कह रहे हैं कि ट्रेनिंग वगैरह, अब ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों है? भाई नए लोग आएंगे, उन लोगों को फेमिलराइज कराना, उनको ओरिएंटेशन प्रोग्राम देना कि भाई क्या हमारे यहाँ के रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या मिशन है, क्या विजन है, वो सारी चीजें हमारी ट्रेनिंग में इंक्लूडेड होती है। फिर उसके बाद एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को भी हमें ट्रेन करना है, उनको रिफ्रेश कराना है उनकी ट्रेनिंग, उनको नई नई चीजों से आप उनको अपडेट करवाओगे। ठीक है,
और अगर किसी तरह का कोई अपडेशन आया है, कोई नई चीजें आई हैं, कोई टेक्नोलॉजी आई है, तो वो भी उसकी भी इंफॉर्मेशन ट्रेन करवाना लोगों को, तो इसलिए भी जरूरी है आपका ट्रेनिंग। फिर प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ जब इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो ट्रेनिंग से भी लोग काफी स्किल्ड होके नए लेवल की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फायदे क्या होंगे? लोग खुश रहेंगे, लोगों का मोरल बूस्ट अप रहेगा, भाई हमें अच्छी ट्रेनिंग्स वगैरह मिलती हैं, सुपरविजन की जरूरत कम पड़ेगी, एक्सीडेंट्स कम होंगे, प्रमोशन के चांसेस बढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी कम होगी, कॉस्ट कम होगी। ये सारी चीजें जो आपकी फायदे में आ जाती हैं। ways methods of trading. ट्रेनिंग भी दो तरह के में होती है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या है, जहां पर हम लोग लोगों को काम कराते कराते नई नई चीजें समझा रहे हैं। ऑफ द जॉब में क्या है, इसमें ट्रेनिंग जो है लोगों को दूसरी जगह पर भेजकर फिर ट्रेन करवाया जाता है। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन में ही रह के ट्रेन ना होके, ऑर्गेनाइजेशन से दूर होके या कोई ट्रेनिंग सेंटर्स पे जाके ट्रेन होके जाते हैं। ठीक है, स्टाफिंग प्रोसेस के क्या स्टेप्स रहेंगे? मैन पावर रिक्वायरमेंट, ये हमने आई थिंक ये तुमने कर लिया। ठीक है, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन ओरिएंटेशन देना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना, सैलरीज देना, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना और उसके बाद प्रमोशन एंड ट्रांसफर देना। ठीक है, मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, किसके लिए? काम करने के लिए। ठीक है, मोटिवेशन में आप लोगों को उस लेवल पे इन्फ्लुएंस करते हो ताकि लोग काम करें, लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को मीट कर सके। ठीक है, अब इसके अंदर ना आपकी कुछ थ्योरीज हैं, जैसे मैस्लो थ्योरी है, हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी है, थ्योरी एक्स एंड वाई है। मैं आपको भी थोड़ी मैस्लो बता देती हूँ, है ना। मैस्लो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, रेस्ट ऑफ द थ्योरीज हम लोग एक्स वाई भी बता दूंगी, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं तो तुम लोग के लिए। मैस्लो हायरार्की बोलती है कि किसी भी पर्सन को मोटिवेट करने के लिए आपको उनके रिक्वायरमेंट पे काम करना पड़ेगा, और हर इंसान की रिक्वायरमेंट सेम नहीं होती। सबसे पहले आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें आप लोग वाटर, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, वो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर क्या होता है, ये बेसिक नीड्स हैं जिसमें लोग जो है बेसिक्स के लिए काम करते हैं, पर जब वो पूरी हो जाएंगी देन दे मूव टू सेफ्टी नीड्स, जहां पर एनवायरमेंटल एंड इमोशनल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन आएगा, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल्स है, फैमिली सिक्योरिटी है। ये सारी चीजें तब आती हैं जब आपका पहला बेसिक जो नीड्स है वो पूरी हो जाए। एम आई ऑडिबल टू ऑल, नैन्सी? Yes, ma'am. ठीक है, देन वी हैव सोशल नीड्स। जैसे सेफ्टी नीड्स जब पूरी हो जाती है तब आप सोशल नीड्स है आपकी आ जाती है, जैसे कि लव, अफेक्शन, केयर, बिलोंगिंगनेस, फ्रेंडशिप। आप इन चीजों की वजह से मतलब मोटिवेट होते हो लाइफ में। ठीक है, और जब आपकी सोशल नीड्स पूरी हो जाएंगी देन वी हैव स्टीम नीड्स, जैसे कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी फ्रीडम, आपने क्या अचीव किया है, वो सारी चीजें।
लास्ट में आपका रहता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब जब स्टीम पूरी हो जाती है फिर आपकी नेक्स्ट नीड आती है विच इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वहां वो ऐसा पॉइंट हो जाता है कि जो हम एक्चुअली लाइफ में करना चाहते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि लोग पूरी जिंदगी काम करते हैं, फिर जब रिटायर होने के बाद वो पढ़ते हैं। लाइक वो पढ़ना चाहते थे अपनी लाइफ में, लेकिन उनकी क्योंकि ये नीड्स पूरी नहीं हुई थी, उनकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी या फाइनेंशियल नीड्स उन लोगों की ज्यादा थी, जिसकी वजह से उनको पूरा करते करते पूरी लाइफ बीत गई। नाउ व्हेन दे हैव अचीव्ड ऑल दीज थिंग्स, दे हैव एम्पल टाइम टू डू व्हाट दे वांट, टू डू व्हाट एक्चुअली दे वांटेड टू डू इन देयर लाइफ। then they do those activities या those things which they want to do in their life। जैसे कई बार आप देखोगे काफी एज में आके लोग अपना ये डांस में, स्पोर्ट्स में, इन सब चीजों में आ जाते हैं क्योंकि वो अपना लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, या कई लोग पढ़ना चाहते हैं, या कई लोग कोई दूसरे प्रोफेशन में आना चाहते हैं, या कई लोग कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वो एक काफी टाइम के बाद कर रहे होते हैं बिकॉज उनको लगता है कि अब मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीट हो गई, मेरा सेफ्टी से वो भी मीट हो गई, सोशल नीड्स भी मीट हो गई, स्टीम नीड्स भी मीट हो गई। नाउ आई कैन वर्क ऑन माई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, सब कुछ है ना, अब आप उसको बोलोगे कि हम आपकी सैलरी बढ़ा देते हैं सर, आप 10 घंटे और एक्स्ट्रा काम कर दो, वो मना कर देंगे, बोलेंगे नहीं आई ऑलरेडी हैव दिस। तो वो आप उनको पैसों से मोटिवेट नहीं कर सकते। हो सकता है आप उनको पोजीशन देके मोटिवेट कर दो, हो सकता है आप उनको उनके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उनका स्पैन बढ़ा के मोटिवेट कर दो, है ना। तो आप खुद जब आप एज अ मैनेजर यू विल वर्क ऑन द पीपल, यू विल एनालाइज कि किस बेसिस पे आप मोटिवेट कर सकते हो लोगों को। ठीक है। तो ये सारी जो ये जो थ्योरी हो जाएगी आपकी मैस्लो नीड थ्योरी हो जाएगी। ओके ये चलो कर लिया, इसको एक बार ना रीड आउट कर लेना, है ना। अच्छा, एक और छोटा, चलो हसबर्ग भी बता देती हूँ फटाफट से। हसबर्ग कर लेते हैं, बाकी इसको खत्म कर रहे हैं, ये इन तीनों को खत्म। ओके, हसबर्ग ने बोला है कि कभी भी जॉब फैक्टर आप कैटेगराइज करोगे तो दो मेन कैटेगरीज हैं जिसके अंदर आप डिफाइन करोगे। एक होता है हाइजीन फैक्टर और एक होता है मोटिवेशनल फैक्टर। तो आपको दोनों फैक्टर्स को पहले से डिफाइन करना पड़ेगा किसी भी जॉब से जुड़ के, जैसे कि आप क्या सैलरी दोगे, किस तरह का स्टेटस होगा, किस तरह की जॉब सिक्योरिटी दोगे, ये सारी चीजें आपके हाइजीन फैक्टर्स में आ जाएंगी। मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं कि जैसे कि आप किस तरह का रिकॉग्निशन दोगे, सेंस ऑफ अचीवमेंट क्या दोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दोगे, ये सारी चीजें जब आप डिसाइड करोगे किसी भी जॉब से रिलेटेड, वो आपका मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस। तो जब भी आप जॉब डिफाइन करोगे, जब भी एक पोजीशन डिफाइन करोगे, तो दोनों फैक्टर्स लोगे आप, मोटिवेशन आपका हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेशनल फैक्टर्स। अब आता है टू फैक्टर थ्योरी, एक होता है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स बोलती है कि भाई एक एवरेज एम्प्लॉय जो है वो काम नहीं करना चाहता। ठीक है, उसको बहुत ज्यादा डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है, राइट। लेकिन थ्योरी वाई वाई बोलती है कि हमें लोगों को नॉर्मली ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो लोग खुद ही मोटिवेटेड होते हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो थ्योरी एक्स जो है थोड़ा सा नेगेटिव उसमें रहती है, और थ्योरी वाई जो है वो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस पे चलती है कि जो हम लोग हैं या लोगों को काम करने के लिए दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, अगर हम उनको प्यार से हैंडल करेंगे तो वो आराम से काम कर लेंगे। ठीक है, लेकिन थ्योरी एक्स बोलती है नहीं, वी नीड लॉट ऑफ कंट्रोल एंड लॉट ऑफ फोर्स टू मेक देम वर्क। ठीक है, एक्स वाई और हर्सबर्ग और मैस्लो, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ लेना है इसको। ठीक है, मोटिवेशन मोटा मोटा कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग कोऑर्डिनेशन तो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो आई थिंक रेस्ट कंट्रोलिंग एंड ऑल वी कैन डू इन द नेक्स्ट क्लास। एनी क्वेश्चन गाइस सो फार? Any question? Any doubt? Hello? Any doubt? No, ma'am. Okay, so we are good to close. Yes, ma'am. ठीक है, चलो ठीक है, then we'll meet in the next class and we'll cover rest of the topics. Okay? Okay, ma'am.
All right then. Take care, guys. Bye bye. Goodbye.